Yes, sir. Okay. So you got queries about ad hoc queries, right? Yeah. Yes, sir. So just forget about queries. Just think only about ad hoc. आप में से किसी को पता है ad hoc क्या होता है? एक Sir, बहुत ये sense में क्या सर? यस यस Sense में क्या extra में क्या चला होता है? जब तक network तब उसका use अभी मैं आपका आवाज अच्छे से सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? सर इसमें लेके मतलब जो एक्स्ट्रा में हो सर, जब जिसका यूज हो तब उसका यूज किया जाए. ओके, एक बहुत फेमस अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक बहुत फेमस टर्म है एड हॉक नेटवर्क. थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ पढ़ाई हुआ है आप लोगों का? क्लाउड कंप्यूटिंग या नेटवर्क ये सब थर्ड सेमेस्टर में हुआ है? यस, किसमें? इस सेम में सर नेटवर्क. यस सर नेटवर्क. ओके ओके, तो जो भी होगा उसमें पूछना कि सर एड हॉक नेटवर्क क्या होता है. एड हॉक मींस नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. एड हॉक फैकल्टी भी होता है. भाविका कौन है? वही भाविका क्या है? इसको दो बार एडमिट किया, उसको क्या कर रही है? वही भाविका. सर उसका नेटवर्क इशू है सर, वो 2 बार लेफ्ट हो गई है ज्वाइन कर कर. ओके, सो एड हॉक मींस फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ओके, whenever needed it creates logically, it will be created, network will be created. Getting what I'm telling you? Wherever it is required, needed, it creates a system, a network. So there is no physical existence of particular network. That is called ad hoc network. Okay, so ad hoc queries. What it says, no way to generate ad hoc queries. Means generation of queries means what? Whenever you need to access the database, you need to fire a query. Means you ask a question, then only you will be getting the answer. Yes or no? Get the point? Yes, Yes. You asked me just about this ad hoc, right? So I'm answering you. So there is no such kind of facility to generate that queries. In simple way, you understand, there is no facility of generating queries. Queries generate nahi kar sakte. Whenever needed, the query cannot be generated. That is called ad hoc queries. Okay, clear? yes sir. Yes sir. आगे बढ़े हैं तब? Yes sir. Okay, then file-based system we have seen. Now we will see relational systems. What it is? What are the problems with early databases? Navigating the records require complex programs. There is minimal data independence, no theoretical foundations. Then in 1970, EF Code wrote a relational model of data for large set data lengths and introduced the relational model. With these, just forget about this story. पहले नहीं था ये. Now, after 70s only, this concept came in the market. Problem है भाविका के साथ यार. Repeatedly, she is going out and coming in, going out, coming in. She is unable to join actually. Bhavika, Yes sir, are you in? Bhavika. sir, her audio is not connected. So how she is managing this throughout the semester? In the last semester, how she managed? कैसे मैनेज किया लास्ट सेमेस्टर में? यही प्रॉब्लम था कि अभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, बार बार कई बार हो जाता था, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हो पाती थी. क्यों, गांव में है क्या? घर गांव से है ये और शहर में कहीं? बिकॉज तो स्टार्टिंग है ना, राइट? दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर. इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा यार. शी बिलोंग टू व्हिच प्लेस? सर उज्जैन. उज्जैन. उज्जैन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नेटवर्क का.
Anyway, so what are the problems with early databases? Navigating the records, queries, complex programs. There is minimal data independence, no theoretical foundations. These are the problems. There are many other problems out there. So in today's system, that is relational database system, what are the features we are having? In early time, there was no such kind of features. Okay, so don't forget about this history, geography. Okay, just concentrate on the today's system. डेटा इंडिपेंडेंस सर क्या होता है? डाटा इंडिपेंडेंस मींस क्या होता है कि भाई अगर मेरा नाम है, मेरा रोल नंबर है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, वो कई चीज पर डिपेंडेंट ना हो। पॉइंट, अगर डिपेंडेंसी होगा, आपका भी नाम होगा, आपका भी रोल नंबर होगा, आपका ही डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर आधार नंबर लेते हो, मेरा आधार नंबर किस पर डिपेंडेंट है? यू नो, आधार नंबर में आपका एक नेम का अल्फाबेट भी रहता है, यू नो दैट। आधार नंबर में यस नहीं बताया ना, आधार नंबर आपका क्या है? आधार नंबर, सॉरी, आपका नाम क्या है? संबुध, राइट? तो आप देखना कि इस आपका आधार नंबर में देखना कि यस कहीं न कहीं आता होगा। आता है क्या? नंबर में कैसे आएगा सर? यस यस, नंबर में सर कैसे आएगा? सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट पैन नंबर। डू यू हैव पैन नंबर? हाँ सर, पैन कार्ड नंबर याद नहीं सर। पैन में देखना यस आता होगा, ठीक है। ऐसे आधार में भी कुछ ना कुछ है, डिपेंडेंसी है, आपके नाम से डिपेंडेंसी है। तो वो डिपेंडेंसी अगर होगा तो क्या होगा? अगर हम कोई चीज फेच करना चाहेंगे, एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। जैसे मैंने बताया मेरा नाम और मेरा पैन नंबर, तो डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। इस तरह से अगर डिपेंडेंट मल्टीपल डाटा पर डिपेंडेंसी होगा, तो इफ आई हैव सम क्वेरी, जब मैं क्वेरी फायर करूंगा तो मुझे करेक्ट रिजल्ट मिलने में बहुत कठिन होगा। इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। मुझे एक सिर्फ और सिर्फ संबुध का पैन नंबर चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। लेकिन आपका पैन नंबर अगर डिपेंडेंट है और सब पैरामीटर पर, विल सी दैट ये चैप्टर, दिस चैप्टर विल कम, ठीक है। एक चैप्टर ही है, सो डोंट वरी, ये आपको नॉर्मलाइजेशन चैप्टर ही आएगा। आपको 5 to 6 लेक्चर्स आई विल टेक इन दैट। तो आप उस समय अच्छे से समझोगे डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी एंड हाउ टू रिमूव दैट, ठीक है। डिपेंडेंसी इन जनरल क्या समझेंगे? आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट के ऊपर, ये तो आप समझते होंगे, ऐसा नो? यू आर डिपेंडेंट योर पेरेंट, क्यों? पेरेंट ही देते हैं आपको, तुम पढ़ाई कर पा रहे हो, सब कुछ जितना कर पा रहे हो, यू आर डिपेंडेंट योर पेरेंट। कुछ सालों के बाद आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपका डिपेंडेंसी लगभग खत्म हो जाएगा, आपके पेरेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आज से 20 साल के बाद आपके पेरेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जैसे अभी आपके पेरेंट का भी अवस्था है, आपके ग्रैंड पेरेंट अभी डिपेंडेंट होंगे आपके पेरेंट के ऊपर, और आप भी डिपेंडेंट है। ये सब डबल डिपेंडेंसी है कि आपके पेरेंट के ऊपर। दैट जनरल मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी। इस तरह से अगर हम डेटाबेस में कुछ स्टोर करते हैं तो डिपेंडेंसी जितना कम होगा उतना इजी होगा हमारा एक्सेस करने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, सो देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल सिस्टम्स। रिलेशनल सिस्टम प्रोबेबली विथ अर्ली डेटाबेस, ये तो हमने देख लिया। 70 के बाद जो कंसेप्ट आया, उसको हम देखते हैं क्या है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज अ टपल्स। अब टपल्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, रिलेशन क्या है, टेबल्स क्या है, विल सी इन डिटेल, डोंट वरी, ठीक है। टपल्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है, एवरीथिंग विल कम, ठीक है। तो ये अभी इतना समझे हम कि रिलेशनल सिस्टम में क्या होता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज टपल्स, टपल्स में रो होता है, टेबल का रो। इन ऑनलाइन लेट मी टेल यू, अभी आपको बता दूं कि टपल्स मींस रोज होता है। टेबल आप जो क्रिएट करोगे, रोज एंड कॉलम्स करते हो आप लोग, yes or no? Tables means rows and columns. मैट्रिक्स तो आप पढ़े होंगे, राइट? क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होता है कि नहीं होता है? सो सिमिलरली आप जब टेबल में जाएंगे तो आपको रोज एंड कॉलम्स फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड टेबल्स और रिकॉर्ड्स इन रिलेशनल और टेबल्स। जैसे हम टेबल में जाएंगे तो हम टेबल यूज करेंगे। विल सी ईच एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी। नाउ देयर इज अ सर, वो श्यान जैन का लीव हो, किसका हो गया लीव? नेटवर्क इशू की वजह से। सर श्यान जैन।
So there is a sound mathematical theory of relations. अब ये चीज भी आपको बाद में हम बताएंगे, रिलेशंस क्या क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे हम रिलेशन निकालते हैं. We will have one chapter. Okay, I'll take some couple of lectures in that mathematical portion also. ठीक है, just keep in mind कि there is a sound mathematical theory of relations. रिलेशन जो होता है ना, डाटा का रिलेशन, टपल्स का रिलेशन, डेकर रिलेशन, टेबल रिलेशन, all the relations will be seen mathematically. Okay, then most modern DBMS are based on the relational model. अब रिलेशनल बार बार टर्म आ रहा है. अभी तो पहले तो क्या था भाई, डाटा बोला आपने, फिर क्या बोला डेटाबेस, फिर क्या बोला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब हम क्या बोल रहे हैं, RDBMS, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब रिलेशंस क्यों टर्म आया रिलेशनल? So throughout the semester we will see this explanation of relational. Why it is called relational? Because it relates multiple tables में आप रिलेशन शो कर सकते हो, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, बहुत सारा कीज भी आएंगे. ये सब चीज अभी आप नहीं समझ पाओगे, मैं धीरे धीरे लेता जाऊंगा, स्लोली आपको समझ में आ जाएगा. Why it is called relational? It is going to show the relations among the tables. In entire database we can have some kind of relations in the form of these tuples or tables or records. We will have some kind of relations. So it is called relational database. So either you say RDBMS or you say DBMS, both are same. But we are using the recent years, we are using relational database management system. So for that we are having lots of benefits. We'll be seeing it. Relational model covers three areas: data structure, data integrity and data manipulation. रिलेशनल मॉडल में तीन एरिया है, मेजर एरिया है. पहला क्या है, डाटा स्ट्रक्चर. आप तो जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है. देन डाटा इंटीग्रिटी इट विल कम, डोंट वरी. ये टर्म अभी जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, सारे के सारे टर्म्स इन डिटेल में आएगा. देखो सचेत सिंह अभी आ रहा है भाई, क्या है तरीका है, डोंट लाइक दिस. डाटा इंटीग्रिटी, डाटा मैनिपुलेशन, ये सारे के सारे टर्म आपको फिर से डिटेल में आएगा. डाटा इंटीग्रिटी के ऊपर मैं कपल ऑफ लेक्चर्स लूंगा, डाटा मैनिपुलेशन में 4-5 लेक्चर होगा, ठीक है ना. आर यू गेटिंग पॉइंट? सो डोंट वरी नाउ, जस्ट कीप इन माइंड रिलेशनल सिस्टम में ये चीज होता है, ये टर्म यूज होता है. ये टर्म सारे के सारे हम डिटेल में सीखेंगे. ओके, राइट. फंक्शन ऑफ DBMS, इसको आप पढ़ें एक बार, ऑल ऑफ यू प्लीज रीड इट वंस. पढ़ सकते हैं थ्योरी, आप पढ़िए प्लीज. Defining database schema. What is the function? Defining database schema. अब एक नया टर्म यहाँ पर आ गया, schema. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, सारे के सारे टर्म को आप मैं फेमिलियर बना दूंगा, सब अच्छे समझ लो, डोंट वरी. Defining database schema. Schema will see later on. ठीक है, physical, logical, everything will see. That chapter will come. It must give facility for defining the database structure. Also specifies access rights to authorized user. Database schema को define करने का function है. Okay, main function is to define the database schema. Schema क्या होता है, हम आपको एक चैप्टर आएगा, one complete lecture will take about schema. You'll understand easily. So just now understand. First function is defining database schema. It must give facility for defining the database structure. ठीक है, schema means क्या होता है, आपको structure होता है. Logical, physical, both will see. Levels, there are 3-4 levels are there. In all levels, how the schema is changing, all those things will come in detail. Okay, so what facilities gives? It gives for defining the database structure. Also specified access right. Access right भी देता है किसको, authorized user के लिए. अगर आप admin हो या आप authorized user हो, you will get certain
एक्सेस राइट। एक्सेस राइट होता है ना भाई कि किस लेवल पर एक्सेस कर पाते हो। एक होता है ओनली फॉर रीड पर्पस, रीडिंग पॉइंट। कोई सा आप फाइल देखते होंगे जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, so it is only to read, you are not allowed to write anything in that. But if open file is there, you can either read, you can write, you can do anything. So that is called access right. उस database में कितना आपको right मिला है? Only you can fetch the data from the database, that is one level of right. You can edit, you can manipulate the database, another level of right. Okay, you can change the schema of the database. एडमिन, डेटाबेस एडमिन जो होता है, जो कल बताया था आपको कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसी का भी पूरा राइट होता है, वो डेटाबेस डिजाइन कर सकता है, डाटा क्वेरी डिफाइन कर सकता है, एवरीथिंग। सो वो राइट भी है आपके पास क्या? इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ राइट, देन यू कैन चेंज द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एक्सेस राइट। व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस यू आर गिवन, ओनली टू रीड और राइट बोथ, मैनिपुलेट, व्हाटएवर। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेस राइट। सो दैट इज व्हाट DBMS function, first function. So if you talk about the complete right, सारे राइट मिल जाए तो किसको मिलेगा? जो एडमिन होगा, ऐसा नो, जो उसका मालिक होगा डेटाबेस का, उसके पास पूरे राइट होगा। आप टिकट बुक करते हो रेलवे में, ऐसा नो, तो आपके पास क्या राइट है? एक्सेस तो करते हो डेटाबेस, कि नहीं करते हो? क्योंकि आपको कहां से रिजल्ट मिलेगा भाई कि कौन सा सीट खाली है, कौन सा नहीं है, कितने सीट खाली है? उसका डेटाबेस में तो पहुंचते हैं ना, आपको क्वेरी कहां पहुंचता है उस डेटाबेस में? ऐसा नो, आपने डिमांड किया कि मुझे 4 सीट चाहिए थर्ड एसी का, ठीक है ना, आपने क्वेरी किया तो इमीडिएट उसके सर्वर से डाटा फेच कर आपको देता है कि नहीं भाई एसी में टिकट नहीं है, टिकट पैक हो चुका है। देन यू गो फॉर स्लीपर, स्लीपर में देखोगे हाँ भाई सीट अवेलेबल, तो इतना देखा कितना सीट है, ऐसा नो। सो दैट लेवल ऑफ राइट यू आर गिवन। इफ 10 tickets have cancelled, ठीक है, 10 लोगों ने क्या किया, टिकट कैंसिल करवा लिया, तो अपडेट तो हो गया डेटाबेस में, होना पड़ेगा ना, क्योंकि जब 0 था टिकट और 10 लोग कैंसिल करवा लिया तो कितना अवेलेबल हो गया? 10 अवेलेबल हुआ। तो वो कौन करेगा अपडेट? वो एडमिन करेगा अपडेट, जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो अपडेट करेगा कि 10 कैंसिल हुआ है तो 10 हमें दिखाना पड़ेगा, या वेटिंग लिस्ट का है वो हटेगा उसका। वो अपडेट हमारे राइट में तो नहीं है ना, हमने टिकट कैंसिल करवा दी, दैट्स इट। लेकिन जो दूसरे का मान लो 1 से 1 नंबर का है वेटिंग लिस्ट, उस घट कितना आ जाएगा? 91 पर आ जाएगा घट के, क्यों 10 लोग ने क्या किया, कटवा लिया, राइट? सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सेस। सो दिस इज गिवन बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन मैनिपुलेशन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस मैनिपुलेट करना। The DBMS must have function like insertion of record into database, updation of data, relation of data, retrieval of data. So these are called manipulation. इसके लिए हम देखेंगे DML, जो भी एक ने पहला स्लाइड में देखा है टर्म DML, DDL and DML देखा आपने? तो DDL means data definition language, how to create table, how to create database, that is called data definition language. Some more features are there, we'll see that. And next one is DML, data manipulation language, that is called manipulation database. So what are the features are there? Updation, deletion, retrieval, insertion, many more are there. Okay, so these are coming under manipulation of database. So this is the second function. Third one is sharing of database. Database can be shared. The database must share data items for multiple users by maintaining consistent data. अब क्या होगा कि एट सेम टाइम आप रेलवे का मैं जैसे एग्जांपल लिया अभी, तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सेम टाइम हिट करता है डेटाबेस पर, ऐसा नो, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हिट द सेम क्वेरी ऑन द डेटाबेस, रेलवे डेटाबेस, और वही रिजल्ट दिखा था आपको। तो दैट्स व्हाट, ये फैसिलिटी शेयरिंग ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। डेटाबेस तो सेम है रेलवे का, ठीक है, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम वो शेयर कर पा रहा है। So that facility, that function must be there, so that at the same time the same database must be shared, must be used by many persons. So that is one function. Then protection of database. How to protect database? For what purpose we protect database? Protection of data. Protecting database, protection of data, because there are many types of data. There are some very sensitive data out there, very sensitive data. Just you take the password, ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड है, ठीक है, अल्गोरिथम पॉइंट। जस्ट टेक वेरी सेंसिटिव एग्जांपल, ऑनलाइन बैंकिंग का क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स से कस्टमर है बैंक में, सबका पासवर्ड है, राइट? तो वो पासवर्ड तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा नो।
नहीं तो भाई आपका 1 लाख रुपया अभी है, 1 घंटा में 0 हो जाएगा, क्यों नहीं? बैंक वाला क्या बोलता है, गारंटी, डोंट वरी, मैं प्रोटेक्ट कर रखा हूँ आपको पासवर्ड, डोंट वरी, आप चेंज करो पासवर्ड, जो करना है करो, लेकिन हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा तो हम ऑनलाइन बैंकिंग में नहीं जाएंगे, मैनुअली जाएंगे, काउंटर में लगेंगे, टोकन लेंगे, पैसा निकालेंगे, जमा करना है तो फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे। बट नाउअडेज एवरीथिंग ऑनलाइन, सो बट दे आर गिविंग गारंटी दैट नो, डोंट वरी, your money will be protected, your password will be protected. So go for online, don't worry, use this app, that app, and go online, don't go manual. So without protection, without a guarantee of protection, we don't trust, we don't believe on any company, on any organization. So protection must be there. ये सब जो साइबर वाला है ना, साइबर के स्टूडेंट 5 बच्चे हैं, इनको बहुत डिटेल में सब्जेक्ट्स आएगा इससे रिलेटेड चीज, ठीक है? Anyway, it must protect the database against unauthorized user. Obviously, अब क्या है कि अब इंडिया है, इंडिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल भी होता है। जैसे कि अब रेलवे बुकिंग का मैंने एग्जांपल लिया था, तो वो अनऑथराइज्ड यूजर तो नहीं बोल सकते उसको, वहां पर पैसा का खेल होता है। रेलवे काउंटर में जिसके हाथ में होता है बुकिंग, उसी को पैसा दे के क्या होता है, टिकट बुक हो जाता है, ठीक है? आप जाओगे तत्काल में, इफ यू गो इन द क्यू इन द मॉर्निंग, व्हेन टाइम कम्स इट विल शो यू दैट नो फर्दर बुकिंग अवेलेबल, ऐसे आता है ना डिस्प्ले में। क्या आता है, आपने 3 घंटा लाइन में खड़ा हुआ, उसके बाद जो आप लाइन, आपका नंबर आया तो आप क्या वो दिखाता है कि नो फर्दर बुकिंग, जबकि आप पहला यूजर हो, यू आर द फर्स्ट कस्टमर। क्यू में जब हो, यू आर द फर्स्ट कस्टमर, जैसे आपने हाथ अंदर डाला, दिया, उसने डाटा फीड किया, वो क्या दिखाता है, नो फर्दर बुकिंग अलाउड। तो कैसे हो गया चमत्कार यार, आपने रात 4 बजे से लाइन में लगा, 8 बजे जब काउंटर खुला तो बोलता है कि नो फर्दर बुकिंग अलाउड, ऐसे कैसे हुआ? तो काउंटर वाले को झापड़ मार दो जाके, भाई ऐसा हुआ कैसे यार? तूने बैकडोर से क्या किया, सारा टिकट बेच दिया, ब्रोकर को दे दिया, ठीक है? तो बट दैट वो ब्रोकर नहीं कर सकता ऐसा, काउंटर वाला ऐसा बदमाशी करता है, वो पहले से क्या करता है, पैसे लेके टिकट वाली बुक घटा कर रख देता है, राइट? सो प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस, नो अनऑथराइज्ड यूजर आर अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस। अगर डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा, तो मैं एग्जांपल वाला सेंसिटिव, आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, इस तरह से बहुत सेंसिटिव डेटाबेस होता है, राइट? इफ इट इज अलाउड टू एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड यूजर, तो हो गया, काम खत्म हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, एवरीथिंग विल बी कोलैप्स्ड, यस और नो? सो देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर। देन डेटाबेस रिकवरी भी करना पड़ता है, कभी आपको डैमेज हो गया, कुछ ब्रेक हो गया, फेल्यूर हो गया, एट दैट टाइम देयर मस्ट बी रिकवरी ऑफ द डेटाबेस। If for any reason the system fails, DBMS must facilitate database recovery, ठीक है ना? डेटाबेस रिकवरी भी आएगा एक चैप्टर, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो कोई कारणवश कुछ फेलियर हो गया, लाइट चला गया, कुछ फेलियर हो गया, तो आपका डाटा को रिकवर करने का फैसिलिटी भी देता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, डेटाबेस रिकवरी। रिकवरी नहीं होगा तो क्या होगा, डाटा लॉस हो गया, हाउ विल यू रिकवर दैट? वेरी डिफिकल्ट। Yes or no? You may have only one copy you have created the database, and due to some reason there is data fail. So there must be a facility to recover those lost data. So these are the main features: defining database schema, manipulation of database, sharing of database, protection of database, database recovery. Okay, ठीक है? Understood? Yes, sir. Yes, sir. We use a database management system when there is a large amount of data. ठीक है? Security and integrity of data are important. Many users access the data concurrently. We use a database management system when, कब जाएंगे हम database यूज करने के लिए? जब हमारे पास large amount of data होगा, तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात, database maintain करना पड़ेगा हमें, ऐसा ना? Agreed point? जब large amount of data होगा तो हमें, जैसे कि आप देखो, आप बहुत सारे जगह अकाउंट खुलवाते होंगे ऑनलाइन, ऐसा ना? बहुत सारे यूजर नेम पासवर्ड हो जाएगा, तो क्या करोगे आप भाई? एक यूजर नेम, आपका ईमेल का यूजर नेम पासवर्ड है, तो आप याद कर लोगे, ठीक है ना? ऐसा ना? लेकिन हर एक चीज आपने ऑनलाइन करा के बैठा तो क्या होगा फिर? Are you getting what I'm telling you? आपका एक ही इंटरनेट का आपका आपका ईमेल आईडी है, तो उसका पासवर्ड आप याद कर लोगे, ठीक है? इस तरह से आप 15-20 अगर करवा लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा ना, तो क्या करोगे भाई? कहीं सेव करोगे आप, जैसा ना, कहीं लिख के रखोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, लाइक दैट। अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा होता तो हमें डाटाबेस में जाना पड़ेगा, वी हैव टू मेंटेन डाटाबेस। सिक्योरिटी पर्पस होता है, इंटीग्रिटी पर्पस होता है,
concurrently बहुत सारा यूजर यूज कर सकता है डेटाबेस. So we go for, so we use database when there is large amount of data. डाटा लार्ज होगा तो हम जाएंगे डेटाबेस में. सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस होगा तब जाएगा डेटाबेस में. एंड वी यूज डाटा कंकरेंटली एट द सेम टाइम. वो सेम डाटा को अगर बार-बार मल्टीपल यूज करेगा एट दैट टाइम वी गो फॉर डेटाबेस. नहीं नेट से हाँ क्या प्रॉब्लम हो गया? ओके. Drawbacks of using file system to store data. Data redundancy होगा, and inconsistency होगा, difficulty in accessing data होगा, data isolation होगा, integrity of problems होगा. So these are the very basic terms. ये सब drawback है file system का, ठीक है? जो हमने पहले देखा ना file system, फिर DMS में आया हमने. So these are the main drawbacks of file system. Data redundancy or duplicacy, redundancy multiple data, same बार-बार आ रहा है same data, they call data redundancy. Then इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं है डाटा में. नाम है, सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, लास्ट नेम नहीं है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है. मींस इनकंसिस्टेंट डाटा, कंसिस्टेंसी नहीं है. वो अलाउ नहीं करता. डेटाबेस आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी जो होता है ना उसको रिमूव करता है. इन डीबीएमएस देयर इज अ प्रोविजन टू रिमूव इनकंसिस्टेंसी. We are having 9 minutes left. Okay, second session में. Okay, just a minute please. आप लोग वेट करो थोड़ा, इसको मैं सेव कर, रिकॉर्डिंग में सेव करो. जस्ट a minute please. Okay. जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? Are you able to understand? Yes. Yes. These are very basic things we are discussing now. ठीक है ना? और जब भी लगे आपको कि ज्यादा हो रहा है सर तो हम रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अभी तो स्टार्ट में है, 2-2 घंटा लेक्चर है, तो आपको ज्यादा लगे तो यू कैन टेल मी, डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, कंटेंट ज्यादा हो जा रहा है कि दिन में तो आप बोल सकते हो, विल टेक स्लोली, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो दैट इज अप टू यू. ऐसा नहीं है कि भाई अब मैं चुपचाप बैठा क्लास में बैठा हूँ, सर बोलते जा रहे हैं, कुछ अंदर में ये नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी काम करो उसका समथिंग रिजल्ट निकलनी चाहिए, राइट, आउटकम निकलनी चाहिए. अगर मैं 1 घंटा ही बैठ के मुझे समझ में आ गया, बाद में समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देंगे उस समय. ठीक है, सिंपली हमारा टाइम है 2 घंटा हम बैठे रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो फिर वेस्टेज ऑफ क्या होगा, रिसोर्स होता है. ठीक है ना. सो इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ थिंग देन अलर्ट मी. ठीक है, आप मुझे बोल सकते हो. ओके, सो we are having 6-7 minutes more. So these are the drawbacks: data redundancy, data inconsistency, then difficulty in accessing data. Data access करना बहुत difficult, क्योंकि particular format ही नहीं होता है हमारे फाइल सिस्टम में. ठीक है ना. अब देखोगे डेटाबेस में आपको एक से एक बेहतरीन फॉर्मेट यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम्स में, रिकॉर्ड्स में यूज करते हैं. सो आपको इसमें नहीं हो पाता, इसलिए एक्सेसिंग क्या होता है, डिफिकल्टी टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम द फाइल सिस्टम. इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, need to write a new program to carry out each new task. Then data isolation, multiple files and formats. Isolation हो जाएगा, रिलेशन नहीं दिखाएगा. यहाँ पर क्या देखा आपने, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS. यहाँ पर क्या बता रहा है, आइसोलेशन हो जाता है. आइसोलेट कर देंगे, 2 मल्टीपल फाइल्स है, उसमें कुछ रिलेशन नहीं दिखा पा रहे हैं. फाइल्स में आप रिलेशंस नहीं दिखा पाते. तो मानो कि एक ही चीज को हमें अगर हम फाइल सिस्टम में जाते हैं तो अगर रिलेशन नहीं दिखा पाते हैं तो हमारा नाम, मेरे मुझसे रिलेटेड जो भी डाटा होगा, तो जहां जहां मेरा डाटा जाएगा वहां वहां मेरा नाम जाएगा. जस्ट थिंक व्हाट आई एम टेलिंग यू. जहां जहां मुझसे मेरा रिलेटेड डाटा जाएगा वहां हर जगह फाइल सिस्टम मेरा नाम लिखना पड़ेगा. हर एक फाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड फाइल्स है, फाइल्स में कोई रिलेशन नहीं है. इसलिए रिपीट द सेम थिंग रिपीटेडली. लेकिन वो अगर हम जाते हैं डीबीएमएस में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, रिलेशन शो कर देंगे, एक ही जगह मेरा नाम रहेगा और मुझसे रिलेटेड जो भी डाटा होगा मल्टीपल जगह में रख सकते हैं. सो बाय फेचिंग माय नेम यू कैन फेच इंटायर डिटेल ऑफ माय. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होगा. इंटीग्रिटी भी एक चैप्टर आएगा, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से इंटीग्रिटी क्या होता है, करेक्टनेस, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, एग्जांपल, अकाउंट बैलेंस
greater than 0 become buried in program code rather than being stated explicitly. ये सब आएगा, आपको बताऊंगा कि इंटीग्रिटी करेक्टनेस होता है। सो डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, अगर हम फाइल सिस्टम में जाते हैं, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होगा, करेक्टनेस प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज रिमूव्ड बाय RDBMS, that is Relational Database Management System. Okay. Okay, let me take the attendance. 5 minutes have. Okay. Are you ready for attendance? Yes, sir. Yes, sir. वही जरूरत है ना, अटेंडेंस का ही जरूरत है कि पढ़ने में जरूरत है भाई? It's good you are concentrating in the class. I like it. लेकिन आप क्लास में 36 प्लस 5 41 हो गए आप लोग, जिसमें से सिर्फ 25 ही आ रहा है क्लास में। कन्वे टू योर फ्रेंड्स दोज हु आर स्लीपिंग, क्लास स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लास में हो चुका है उसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा फिर से। प्लीज आपको जो सर्कल में जो फ्रेंड्स है प्लीज आप लोग कन्वे कर दे, सेशन स्टार्ट हो चुका है, क्लास अटेंड करें, ठीक है? चलो अटेंडेंस प्लीज। आयुष प्रेजेंट, अजय, अमन सिंह, प्रेजेंट सर। अमनुल्लाह खान, Amanullah present, sir. आनंद, अनंत, अंजनी, Anjani present, sir. अंकिता, आयुष, चिराग, Chirag present, sir. फैजल, Present, sir. हर्ष, Present, sir. कौशल, Present, sir. कौशल प्रेजेंट, Yes, sir. किशन, किशन एब्सेंट, प्रतीक, पलक, Present, sir. पलक प्रेजेंट, Yes, sir. पीयूष, Present, sir. Present, sir. रितिशा, रोहित, Present, sir. श्रेयांश, श्रेयांश, सुधीर, Sir, present too. कौन प्रेजेंट? शेष जैन उसकी आवाज नहीं आ रही sir. सुधीर, तनिष्क, Present, sir. वैभव, यस, Present, sir. संबोध, Present, sir. श्रीनिवास, Present, sir. जेबा, Present, sir. अनिभा, प्रेजेंट सर। ईशान, काव्या, अमन उपाध्याय, अदिति, ईशान, Present, sir. संस्कृति, प्रेजेंट सर। शशिकांत, Present, sir. CSF, अद्विता, Present, sir. राविका, Present, sir. माही, Present, sir. सचेत, सचेत, Sir, Akash present, sir. okay. Anybody left? किसी का छोटा तो नहीं? It's okay. You have any query for today's session? कुछ query है आपका आज का? मैं आज किसी टाइम में ये PPT जो है आज यानी तो कल मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है?
आप लोग पीपीटी से पढ़ना। आप लोग ने बुक डाउनलोड सर, वो- करना। हाँ बताओ। सर वो बुक सर। अच्छा, बुक भी मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो मैं बुक भी मेल कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। यस सर। हैप्पी नाउ? क्लासरूम इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करा अभी तक। क्या क्या क्लासरूम? हाँ हाँ, गूगल क्लासरूम। क्लासरूम इनवाइट आपको सेंड करा था ना आपके। ओके, ठीक है ना, मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करके मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी, ठीक है। तो लीव करें आज का सेशन। ओके सर। थैंक यू। चलो, ओके।